ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یاد سے قریب 24 سال پرانی کہانی ہے، جیسے میں آپ بھی کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ واقعہ میرے دل و دماغ کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ میری روح میں سنسنی خیز لہریں دوڑنے لگتی ہیں اور میں پوری شدت سے چاہنے کے باوجود وہ دن رات نہیں بھلا سکتی جب وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی اور کانوں سے سنتی تھی۔ میرا نام سائرہ بانو ہے اور میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ اب میری عمر اس کے وقت 64 سال ہے۔ میرے آنگن میں پوتے پوتیوں کی کھلکھلاہٹیں گونجتی ہیں اور ہر پرندہ دن یا مہینے بعد نواسے نواسیاں اپنے والدین سمیت ملنے آتے ہیں۔ میں جس گھر میں رہتی ہوں یہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جس کے بڑے سے آنگن میں میرے بچوں کا بچپن نہیں گزرا، مگر مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ یہیں کھیل کر جوان ہوئے ہوں۔ دراصل میری یہ کہانی اس دور کی ہے جب 40 برس کی تھی اور اپنے حصے میں جائیداد میں سے ملنے والی ایک حویلی میں اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ مقیم تھی۔ میں، میرے شوہر اور میرے 4 بچے اس حویلی میں رہتے تھے۔ بڑی بیٹی 17 سال کی تھی۔ اس کا نام حوریہ بانو رکھا تھا میں نے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا رنگ روپ حوروں جیسا تھا، نرم و نازک سی گڑیا جسے پہلی بار گود میں لے کر میں اپنا وجود مکمل محسوس کر رہی تھی۔ حور بانو سے چھوٹے 2 بیٹے تھے میرے، عثمان اور ریحان۔ دونوں ہی قد کاٹ اور رنگ روپ میں اپنے ابا پر گئے تھے، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی اس وقت 5 سال میں تھی، جسے ہم نے نورین بانو نام دیا تھا، مگر پیار سے نور پکار سکتے تھے، جیسے حوریہ بانو کو میں پیار سے حور کہا کرتی تھی۔ حویلی میں 13 کمرے، 4 بڑے بڑے دالان اور حویلی کی بیرونی سمت ایک بہت بڑا صحن تھا، جس کے ایک حصے میں درختوں کی ایک قطار لگی تھی اور رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ پھولوں کی ان کیاریوں میں سے ہر وقت مہکتے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں ہواؤں کو معطر رکھتی اور درختوں پر موسم کے پھل لگتے جن سے ہم لطف اندوز ہوتے تھے۔ ایک درخت پر بچوں نے جھولا ڈال رکھا تھا اور وہیں قریب ہی بچوں کے لیے میز کرسیاں ڈال رکھی تھی، تاکہ بچے کھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی لکھائی کا کام بھی اس جگہ پر آسانی سے کر سکیں، کیونکہ قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی اس جگہ بہتات تھی۔ حویلی کی بھلائی منزل پر حور بانو اور دونوں بیٹوں کے کمرے تھے، جبکہ میں، ان کے ابا اور نور بانو حویلی کے زیریں حصے میں کمرے میں رہتے تھے۔ وہیں ساتھ ہی دالان میں کچن تھا۔ مجھے کچن کے کاموں میں آسانی رہتی تھی۔ بھلائی منزل پر حور بانو کا کمرہ صحن کے اس حصے کے جانب تھا جس میں درخت ہوا کرتے تھے۔ حور بانو نے اپنی مرضی اور خوشی سے وہ کمرہ لیا تھا، کیونکہ اس کی بڑی کھڑکی درختوں کی طرف کھلتی اور پھولوں کی کیاریوں سے پھولوں کے دلفریب خوشبوئیں کھڑکی سے حور بانو کے کمرے تک جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حور بانو کو وہ کمرہ اور کمرے کا وہ حصہ بے حد پسند تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سادہ طرز زندگی ہوا کرتی تھی، لوگوں کو لوگوں کی قدر بھی تھی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کے کام آنا اخلاقی فرض سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ کا عام رواج نہیں تھا۔ محلے کے کسی ایک گھر یا حویلی میں مشکل سے ہی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور محلے کی لڑکیاں بالیاں اسی جگہ جمع ہو کر ٹی وی پر کوئی ڈرامہ یا پروگرام دیکھ لیا کرتی تھیں، اور لڑکے میدان میں کھیل کود کر کے تفریح کا سامان کرتے تھے۔ ایسے علاقے کے بڑے بزرگ کسی ایک جگہ بیٹھک لگاتے اور گرمی کی راتوں میں دیر گئے محفل جمائے رہتے۔ تمام اہل علاقہ اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ہر دکھ درد میں شامل رہا کرتے تھے۔ جب بجلی بھی ہر گھر یا علاقے میں نہیں ہوا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے علاوہ چند ایک گھر اور حویلیاں ایسی تھی جہاں بجلی کا انتظام تھا، ورنہ عام طور پر باقی گھروں میں موم بتیاں اور لالٹین استعمال ہوتی تھیں یا چراغوں کی روشنیوں کو رات کے اندھیروں میں مفید بنایا جاتا تھا۔ ہماری حویلی میں بجلی تھی اور پیلے بلب کئی جگہ لگا رکھے تھے تاکہ بچوں کو کسی قسم کا ڈر نہ لگے۔ حور بانو اور دونوں بیٹے اسکول جاتے تھے۔ پڑھنے میں میرے بچے شروع سے بہت اچھے رہے اور اسکول میں پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں بھی آگے آگے رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ابا نے حویلی کے اندر ان کی پڑھائی اور شوق کے مطابق سہولتیں بچوں کو فراہم کر رکھی تھیں۔ حور بانو اس وقت 17ویں سال میں تھی۔ اس کی دودھیا رنگت اور لمبا قد اسے باقی لڑکیوں میں
नुमाया करता था। मुझे याद है कि एक मर्तबा मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून मेरे यहाँ तशरीफ फरमा थी और मुझसे बातें करने के साथ साथ साग बनाने में मेरा हाथ भी बटा रही थी। वो हल्की हल्की सर्दी के दिन थे और हम दलान के सामने धूप में बैठे थे, जहाँ से सेहन का दरख्तों वाला हिस्सा साफ नजर आता था। दरख्तों पर बंधे झूले पर हूर बानो झूला झूल रही थी और साथ कुछ गुनगुनाने की धीमी आवाज हम तक आ रही थी। वो खातून मुझे कहने लगे कि बेटी, इस तरह जवान बच्चियों को दरख्तों और फूलों के पास ना जाने दिया करो। बच्चियों पर नजर हो जाती है और वो बीमार रहने लगती हैं। और फिर अपनी हूरबानो तो है भी बहुत खूबसूरत। मगर मैंने खातून से कहा कि कुछ नहीं होता अम्मा, हमारी हवेली में ऐसा कुछ नहीं है। सारी जिंदगी हमने यहाँ गुजारी, यही जवान हुए और ब्याने के बाद भी यही हवेली हमारे हिस्से में आ गई। फिर देखो ना, मेरे सारे बच्चे यहीं पे पैदा हुए, इन दरख्तों और फूलों के बीच खेलते हुए जवान हो रहे हैं। ऐसा वैसा कुछ होता तो बच्चे या मैं ही कभी डर जाते, मगर ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल बात आई गई हो गई, मगर जब भी हूरबानो अब दरख्तों की तरफ जाती तो मेरा दिल धड़क सा जाता। दिन गुजरते गए और फिर मैं ये सब बातें भूल गई। हूरबानो के इम्तिहान सर पर थे और वो खूब पढ़ाई में मसरूफ थी। वो अपने कमरे में रहा करती थी तो मैं भी इसकी मसरूफियात का सोचकर इसे खाना वगैरह ऊपर इसके कमरे में पहुंचा दिया करती थी। ज्यादा काम और छोटी बच्ची के साथ की वजह से मुझे ऊपर जाने का कम ही मौका मिलता। फिर उस्मान और रेहान के होते हुए मुझे सीढ़ियां चढ़ने की भला क्या जरूरत थी। मैं खाने पीने या जरूरत की कोई भी चीज इन दोनों बच्चों के हाथ ऊपर हूर को भी पहुंचा देती थी। एक रात नींद से मेरी आंख खुली तो महसूस हुआ कि मुझे प्यास की शिद्दत ने पानी की तलब पर जगा दिया था और इत्तेफाक से इस रात कमरे में पानी भी खत्म था। बच्चों के अब्बा और नूर बानो सो रहे थे तो मैं जग उठाकर बाहर बावर्ची खाने की जानिब बढ़ने लगी। सर्दी काफी हो चुकी थी और रात के इस पहर सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसे कि जरा सी आवाज भी कानों में पड़ रही थी। बावर्ची खाने में पानी जग में डालते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे सामने दरख्त पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही है। तो मुझे ख्याल आया कि इस दरख्त पर तो हूर बानो के कमरे की खिड़की से बल्ब की तेज रोशनी आती है, तो ये आज रोशनी इतनी मध्यम क्यों है। इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं सहन में जाकर बलाई मंजिल पर बने हूर बानो के कमरे की इस खिड़की की जानिब देखने लगी तो दरख्तों वाले हिस्से की जानिब खुलती थी। वहां से वाकई मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कि मोमबत्ती जला रखी हो। तो मैं काफी हैरान हुई कि लाइट की मौजूदगी में हूर बानो उसने मोमबत्ती क्यों कर जलाई होगी। मैं पानी का जग लेकर अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है हुरबानो के कमरे का बल्ब खराब हो गया हो और इसे पढ़ने के लिए मोमबत्ती जलानी पड़ी। ऐसा सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता न चला। अगली सुबह हुरबानो से पूछा तो इसने जवाब दिया कि इसे बल्ब की रोशनी से सर दर्द होता है, क्योंकि वो काफी रात तक पढ़ती रहती है। इस वजह से मोमबत्तियों की रोशनी में इसे सुकून से पढ़ने का मौका मिलता है। मैं हुरबानो के जवाब से ज्यादा मुतमईन तो ना हुई, मगर सोचा कि चलो जैसे बच्ची को बेहतर लगे, हमें क्या एतराज हो सकता है। आखिरकार पढ़कर इसने अच्छे नंबर लाने हैं, तो जैसे इसे आसानी हो वो पढ़ सकती है। बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए और मैं अपनी निगरानी में मुलाजमत से सफाई करवाने लग गई। जाने का भी बात मेरे जहन से निकल गई और मैं कामों में मसरूफ हो गई। जिंदगी मामूल पर गुजर रही थी। बच्चे रोजाना स्कूल जाते थे। बच्चों के अब्बा अपनी जमीनों और दीगर कामों के लिए सारा दिन बाहर रहते, जबकि हवेली में नूर बानो और मैं सारा दिन कामों में और नूर बानो किसी न किसी खेल में लगी रहती। नूर बानो के इम्तिहान करीब होने की वजह से वो स्कूल से आकर खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती और फिर अगली सुबह नाश्ते की मेज पर मिलती थी। और अब ये रोज का मामूल बनता जा रहा था कि रात को वो रोज मोमबत्तियों की रोशनी में पढ़ाई करती। मगर मैं कुछ दिन से एक बात महसूस कर रही थी कि मेरी हूर बानो दिन ब दिन निखरती जा रही थी। इसकी दूधिया रंगत में मानो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। मैं इसे एक नजर टिका कर देख नहीं पाती थी। मेरा दिल धक से रह जाता था, इसे कहीं नजर न लग जाए। वो इतनी खूबसूरत जो थी। एक रोज मैंने बच्चों के अब्बा से भी कहा, मुझे डर लगता है हुरबानो को नजर न लग जाए, इसकी रंगत में गैर मामूली तब्दीली आ रही है। मगर वो ये कहकर मेरी बात टाल गए कि मेरा वहम है,
हूर बानो सारा वक्त अपने कमरे में गुजारती है और धूप समेत आलूदा हवा से बचती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इनकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गई, मगर मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। मैं अब खास तौर पर हूर बानो को देखती और महसूस करती कि क्या ये मेरा वहम है। शायद मजीद कुछ दिन गुजरे तो मेरा शक बढ़ने लगा। उस दिन भी सुबह के वक्त जब हूर बानो नीचे आई और नाश्ते की मेज पर बैठी तो मुझे इसका चेहरा चांद सितारों की तरह चमकता हुआ महसूस हुआ। मैंने इससे पूछा कि वो सारी रात पढ़ती है तो नींद कब पूरी करती है। इसने जवाब दिया कि वो स्कूल से आकर दोपहर को खाने के बाद कुछ आराम कर लेती है और रात को भी दरमियान में सो जाती है, फिर पढ़ाई करती है। इन सब बातों के दौरान मैं गौर से इसके चेहरे की जानिब देखती रही। वाकई इसकी रंगत में मामूल से हटकर बहुत ज्यादा चमक थी। इसके बाद वो नाश्ता करके भाइयों के साथ स्कूल चली गई तो मैंने इसके अब्बा से एक बार फिर तस्करा किया, मगर वो मुझे हर बार वही जवाब देकर मुतमईन करने की नाकाम कोशिश करते। बहरहाल वो भी अपने काम पर चले गए तो मैं उस दिन मुलाजमा से साफ सफाइयां करवाने के बाद बलाई मंजिल पर थी। सफाई करवाने गई और अपनी निगरानी में तमाम कमरों का जायजा लिया। उस्मान और रेहान के कमरे भी अलग अलग थे, मगर हूर बानो का कमरा इनके कमरों के सामने की तरफ थोड़ा साइड पर था। मैं मुलाजमा के साथ इसके कमरे के जाने बढ़ी तो मुझे अनजाना से खौफ महसूस हुआ, मगर शायद ये मेरे अपने अंदर का खौफ था जो बिला वजह मुझ पर हावी हो रहा था। मैंने जानबूझकर नूरबानो के नीचे कमरे में उसको सुला दिया था। इसके बाद ही मुलाजमा के साथ ऊपर गई थी। हूरबानो के कमरे का दरवाजा खोलकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। अगरचे मैंने मुलाजमा को किसी बात का अपने खौफ की बाबत कुछ जाहिर नहीं किया था, इसलिए इसे अंदाजा नहीं था कि मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। कमरे का दरवाजा खोलते ही मुझे हल्की हल्की खुशबू महसूस हुई और कमरे में इस वक्त अंधेरा था, लेकिन सामने खिड़की खुली जो दरख्तों वाले हिस्से में थी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो कमरे में कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिस पर मुझे शक हो। हूरबानो की अलमारी और संघार में इसको अच्छी तरह चेक करने के बाद मैं इसकी पढ़ाई की मेज की जानिब गई और किताबों को समेट कर रखा। इस दौरान मुलाजमा साफ सफाई करती रही। फिर मैं आगे बढ़कर दरख्तों के हिस्से में खुलने वाली खिड़की के पास चली गई। खिड़की का एक पट खुला था, वहां से ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। पूरे कमरे का तसल्ली से जायजा लेने के बाद मैं मुलाजमा को अच्छी तरह सफाई करने का कहकर नीचे आ गई। किसी हद तक मेरे दिल को इत्मीनान हुआ था, मगर मैं सोच रही थी कि संघार मेज या अलमारी में ऐसी कोई क्रीम तो नजर नहीं आई जिसके इस्तेमाल से हूरबानो के रंग मजीद निखरते जा रहा था। खैर, मैंने इन खामखा के खदशात को दिमाग से निकाल फेंकने का सोचा और कामों में मसरूफ हो गई। ये शायद मजीद एक दो दिन गुजरने के बाद की बात है। जब मैं किसी काम से रात के तीसरे पहर उठी तो मुझे महसूस हुआ हूरबानो के कमरे की खिड़की से कुछ आवाजें आ रही हैं और वही मोमबत्तियों की रोशनियां फैली हुई नजर आ रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आया कि आवाज कैसी है। मैंने डर के मारे बच्चों के अब्बा को उठाया और कहा कि हूरबानो के कमरे से बोलने की आवाज आ रही है, चलें ऊपर चलकर देखते हैं। मगर इन्होंने मुझे कहा, हो सकता है वहां कमरे में उस्मान या रेहान हूरबानो के पास पड़ रही हूँ। मगर मेरे इसरार पर वो उठे और मुझे कहने लगे, मैं देख कर आता हूँ, आप यहाँ नूरबानो के पास रहें। कुछ देर बाद वो लौट आए और उन्होंने बताया कि हूरबानो अपने कमरे में तेज आवाज से पड़ रही है। इस वजह से आवाज आपको महसूस हुई। ये कहकर वो सो गए, मगर मैं उलझन में रही, जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह नाश्ते की मेज पर हूरबानो को देखा तो मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। इसके चेहरे पर नजर नहीं टिक रही थी। इसके चेहरे की रंगत ऐसी थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ न कहा और कोई सवाल न किया। अब मैं बच्चों और इनके जाने के बाद कामों में मसरूफ रही, लेकिन साथ साथ मेरे जहन में एक ख्याल रहा जिस पर मुझे हर सूरत अमल करना था, और मैंने ऐसा ही किया। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए और मैं नूरबानो को सुलाने लगी तो मेरा कोई इरादा नहीं था आज रात सोने का। मैंने तय कर रखा था कि आज रात जब सब सो जाएंगे तो मैं हूरबानो के कमरे में जाऊंगी और देखूंगी कि माजरा क्या है। और फिर मैंने ऐसा ही किया। जिस वक्त सब सो चुके थे और रात के 2:45 बज रहे थे, मैं आहिस्ता से उठी और पहले सहन की तरफ जाकर हूरबानो के कमरे की खिड़की का जायजा लिया। हस्बे मामूल मोमबत्तियों की रोशनियां वहां से नुमाया नजर आ रही थी। फिर मैं दबे पांव बालाई मंजिल की जानिब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर पहले मैं उस्मान के कमरे के पास गई और धीरे से इसके कमरे का दरवाजा खोला। वो सुकून से सोया हुआ था और कमरे में 0 साइज बल्ब जल रहा था।
मुझे तसल्ली तो थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और रेहान के कमरे की जानिब बढ़ गई। रेहान भी उस्मान की तरह नींद की वादियों में गुम था और इन दोनों को देखने के बाद अब मेरा रुख हूर बानो के कमरे की जानिब था। इसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए मेरे अंदर खौफ रक्स करने लगा और माथे पर ठंड के मौसम में भी पसीने आ रहे थे। चूंकि सन्नाटा छाया हुआ था इसलिए हल्की सियाहट भी सनसनीखेज माहौल पैदा कर रही थी और मैं दबे कदमों से आगे बढ़ने लगी। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर मैंने पहले दरवाजे से कान लगाया, मगर अंदर से किसी किस्म की कोई आहट तक सुनाई ना दी। तो मैंने बहुत ही आराम से खामोशी से दरवाजे को खोलना शुरू किया। थोड़ा सा दरवाजा खुला था और अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था, तो मैं वहीं से अंदर देखने लगी। कमरे में सारी तरफ मोमबत्तियां रोशन थीं और बिल्कुल खामोशी थी। कमरे में मेज की तरफ जब देखा तो हैरानी की इंतहा न रही। वहां मेरी हूर बानो बाल खोले बैठी थी और इसके आसपास 4 साए मंडला रहे थे। ये मंजर इतना होलनाक था कि मेरे मुंह से चीख निकलते रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मैं मजीद वहां रुकने की हिम्मत नहीं रखती थी। कमरे का दरवाजा वैसे ही छोड़कर दबे पांव भागती हुई नीचे आई और अपने कमरे में आकर दम लिया। बिस्तर पर नूर और नूर के अब्बा पुरसुकून नींद सो रहे थे और मेरा सांस ही मेरा साथ नहीं दे रहा था, मगर सर चकराने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जो मंजर मैं देख कर आई हूँ वो आखिर क्या था। वो कैसे 4 साए थे और मेरी हूर बानो अपने खुले बाल वहां क्यों बैठी थी खोले, और ये सब क्या चल रहा था। सोच सोच कर मेरा दिमाग माऊफ होने लगा। मैं उठी और जाकर वुजू किया और नवाफिल पढ़ने लग गई। जाने कितनी देर तक मैं नवाफिल पढ़ती रही और अपनी हूर बानो के लिए दुआएं करती रही। सुबह नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। बारी बारी सब बच्चे तैयार होकर आने लगे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सबको नाश्ते में अपना मनपसंद नाश्ता चाहिए था। मैं काम के दौरान हूर बानो का इंतजार कर रही थी और जब वो आई तो मैंने इसके जानिब गौर से देखा। इसके चेहरे पर वही मखसूस चमक मौजूद थी। वो मुझे देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुराई। मुझे अजीब सा एहसास अपने अंदर सुरायत करता महसूस हुआ। इस रोज हूर बानो ने नाश्ता बहुत दिल से किया और काफी ज्यादा खाया। वो जिस रग़बत के साथ मुस्कुराते हुए नाश्ता कर रही थी, मेरे अंदर खौफ बहुत ही ज्यादा हिचकोले बैठा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों के अब्बा ये सब नोट क्यों नहीं कर रहे थे और मेरे कहने पर भी वो कुछ खास तवज्जो नहीं देती थी। इसलिए अब मैंने इनसे बात करने का इरादा तर्क कर दिया और सोचने लगी कि किस पर एतमाद करते हुए उससे ये मामला डिस्कस करूं। बच्चों ने नाश्ता किया और खेलने के लिए सहन में चले गए। हूर बानो ऊपर अपने कमरों में जाने लगी तो मैंने इसे रोककर कहा, आज छुट्टी है, बाहर सहन में खेलो, बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारो। तो मेरी बात सुनकर वो इस बात में सर हिलाती दरख्त पर लगे झूले की जानिब बढ़ गई। मैं मुसलसल इसे देख रही थी। वो झूले पर लहराने लगी और फिर इसने अपनी स्याह खूबसूरत जुल्फें भी खोल दी। जिस पर मैंने इसे टोका तो इसने अपने बाल बांध लिए और पढ़ाई का कह कर अपने कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद मुझे अम्मा भी का ख्याल आया। इन्होंने मुझे तलकीन की थी कि जवान बच्चियों को दरख्तों और फूलों के करीब नहीं जाने देना चाहिए। मैंने अम्मा भी से मिलने का इरादा कर लिया और दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल और बच्चों के अब्बा काम पर चले गए तो मुलाजमा के हाथ कहलवाकर अम्मा भी को बुलवा लिया। दोपहर का खाना तैयार करने के लिए मैं सब्जी लेकर सहन में बैठ गई। जब अम्मा भी आई और मेरी परेशानी भांपकर मुझसे पूछने लगी तो मैंने इनसे सारा वाकया कह डाला। मेरी बातें सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि इसी वजह से बड़े बूढ़े जवान लड़कियों के मामलात में एहतियात बरतने का कहते हैं, और फिर तुम्हारी हूर बानो तो है भी बहुत खूबसूरत। अम्मा की बातें सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई और इस सब का हल निकालने के लिए अम्मा के साथ कारी साहब से मिलने चली गई। कारी साहब ने कुछ अमलियात बताए और नमाज की पाबंदी करने को कहा और साथ ही हूर बानो को भी नमाज पढ़ने और पाकीज़ा रहने के लिए मुझे तलकीन की और कुछ तावीज़ की धोनी देते हुए मुझे दिए और कहा जितनी जल्दी हो सके हवेली बेचकर किसी मुनासिब जगह घर ले लें। कारी साहब की बातों पर अमल करना किसी हद तक मुमकिन था। इस बात का मुझे कुछ अंदाजा था, मगर हिम्मत करके तमाम माजरा मैंने अपने शौहर से कहा। पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुझे समझाने लगे, मगर जब मैंने इनको
پوری بات بتائی کہ کمرے میں کیا منظر دیکھا تھا تو وہ بھی پریشان ہوئے۔ پھر اس رات تقریباً اس وقت ہم دونوں حوربانوں کے کمرے میں گئے تو ہمیں وہی منظر دیکھنے کو ملا جس کو دیکھ کر ایک بار پھر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کمرے میں موم بتیاں روشن تھی اور سائڈ پر میز کے سامنے زمین پر حوربانو اپنے بال کھولے بیٹھی تھی۔ اس کے بال لمبے اور سیاہ تھے جو اس وقت بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے آس پاس 4 سائے منڈلا رہے تھے اور حوربانو کو جیسے ہوش نہیں تھی، وہ جھوم رہی تھی اور کچھ ہلکی ہلکی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ ہمیں نہیں سمجھ آیا وہ منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہے۔ ہم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چاروں سائے گول گول دائرہ بنائے حوربانوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور پھر اچانک وہ رک گئے اور یوں محسوس ہوا جیسے حوربانوں کے چاروں طرح حلقہ بنا کر بیٹھ گئے ہوں۔ اس کے بعد مزید ہمت نہیں تھی کہ ہم وہاں رکے یہ سب دیکھتے رہیں یا اندر کمرے میں جا کر لائٹ جلا دیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، مگر ہم اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو گئے۔ ہمت کر کے ہم دونوں واپس اپنے کمرے میں آئے اور آگے کا سوچنے لگے۔ اب میرے شوہر بھی میرا ساتھ دینے کو پوری طرح تیار تھے۔ اگلی صبح ہم اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ناشتہ بنایا، بچوں نے ناشتہ کیا۔ اس دوران ہم تھوڑی بہت باتیں کرتے رہے۔ حوربانوں سے اس کے امتحانات کے بارے میں پوچھا تو اس نے بہت اچھے انداز میں اپنے ابا کو تفصیل بتائی کہ اس کے امتحان بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور پھر باری باری عثمان اور ریحان سے دریافت کیا۔ بچوں اور میرے شوہر نے ناشتہ ختم کیا اور اپنے اپنے کاموں کی راہ لی۔ میں کام کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب کس طرح معاملات سنبھالنے ہیں۔ میں نے اگلی 7 دن تعویذ جلا کر دھونی دینے کا کام شروع کیا۔ روزانہ مغرب اور عصر کے درمیان تعویذ جلا کر دھونی پورے گھر میں دیتی، خاص طور پر حوربانوں کے کمرے اور درختوں والے حصے میں، اور پھر نہا کر مغرب کی نماز ادا کرتی۔ نماز کے علاوہ نوافل پڑھ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتی اور کچھ عملیات پڑھ کر اس پر دم کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ اسے بھی نماز کی تلقین کرتی، یہاں تک کہ کچھ دن میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا، جس پر پہلی پہل تو وہ مان کر نہیں دے رہی تھی، پھر اپنے ابا کے کہنے پر مان گئی۔ وہ یہاں میرے پاس کمرے میں سوتی اور اس کے ابا برابر والے کمرے میں سوتے تھے، اور میں نے عثمان اور ریحان کو بھی زیریں منزل میں ہی کمرے سیٹ کروا دیے۔ شروع میں حوربانوں کے رویے میں کچھ چڑچڑاپن اور ضد شامل ہو گئی۔ وہ کھانا کھانے میں بھی دل نہیں لگاتی تھی، زیادہ وقت خاموش رہتی تھی۔ چونکہ اس کے امتحان ہو چکے تھے، اس وجہ سے اب سارا وقت گھر کے اندر میری نظروں کے سامنے گزرتا اور میں جان بوجھ کر اسے اپنے سامنے رکھنے لگی۔ بچوں کے درختوں والے حصے میں جانے پر پابندی لگاتی۔ تقریباً 3 ہفتے لگے ہمیں یہاں، مگر معاملات کافی حد تک کنٹرول میں آ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ حوربانوں کا رویہ بہتر ہو رہا تھا، مگر وہ باقی بچے بھی حویلی کو چھوڑنے کی وجہ سے کچھ اداس تھے۔ دوسری طرف میرے شوہر نے حویلی کو بیچنے کا مکمل انتظام کر لیا، اور سب سے پہلے حویلی کے درختوں والے حصے کو صاف کروا کے وہاں کی زمین پر ایک مدرسہ بنوا دیا، اور حویلی کا باقی حصہ بیچ کر شہر کے ایک اچھے علاقے میں گھر لیا، جس میں ہم کچھ دن بعد شفٹ ہو گئے۔ نیا گھر حویلی جیسا بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر ہمارے لیے بہت تھا۔ یہاں تمام کمرے نیچے منزل پر تھے۔ حوربانوں کا کمرہ اپنے کمرے کے ساتھ والا منتخب کیا میں نے، اور اس کے ساتھ ہی حوربانوں کو سلانا شروع کر دیا۔ پہلے پہل نئے گھر میں کسی کا دل نہیں لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ سب نے اپنے دل کو سمجھا لیا اور نئے ماحول میں خود کو مانوس کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ میری خاص توجہ اب بھی حوربانوں پر تھی۔ اس کے اندر مثبت تبدیلی آ رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف اس کے چہرے کی رنگت معمول کے مطابق محسوس ہونے لگی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی دکھاتی تھی، اور میں بھی مطمئن تھی کہ میری بچی کا وقت پر علاج ہو گیا۔ بچوں کو نئے اسکول اور مدارس میں داخل کروا دیا، اور پھر وقت اپنی روانی میں بہتا گیا۔ ہم نئے ماحول میں پوری طرح گھل مل گئے۔ میرے بچوں کو یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہاں گھر کے اندر میں نے لان میں کوئی درخت نہیں لگانے دیا، اور میں خوشبو کے استعمال میں بھی احتیاط کرتی تھی، خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں بہت محتاط رہتی۔ میرے آس پڑوس میں رہنے والوں لوگوں کے ساتھ بھی میری بات چیت ہونے لگی۔ اسکول میں بچوں کا دل لگنے لگا، اور اب میں بہت مطمئن تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میرے بچے جوان ہو گئے، تو سب سے پہلے حوربانوں کی شادی کر دی۔ اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا گھر دیکھا، اور اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ شادیاں کی۔ اپنی بہوؤں کو بیٹوں جیسا پیار دیا، اور پھر آخر میں اپنی حوربانوں کو بیاہ کر رخصت کر دیا۔
जिंदगी कभी कभी मौसम सरमा की नरम नरम धूप जैसी लगती है जिसमें बैठकर एक सुकून पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। और जिंदगी में वो वक्त भी देखा है जब तेज गर्म झुलसती धूप ने तन मन पर अपने असरात छोड़े, मगर कुछ भी कभी रुकता नहीं है। आज मेरे आंगन में मेरी हूर बानो और नूर बानो तो नहीं खिलती, मगर इनके बच्चे जब भी आते हैं मेरा मन झूम उठता है। मेरी बेटियां अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं और इनके साथ मेरी दुआएं हर वक्त इन पर साया किए रहती हैं। मेरे बेटे और बहुएं भी बहुत नेक और फरमाबरदार हैं और मेरे पोते पोतियां तो मेरी जान है। हम दोनों बूढ़े दादा दादी बच्चों को खेलते हुए देखकर बीते दिनों को याद करते जिंदगी गुजार रहे हैं। लॉन में लगे खुशनुमा फूल और बहार के कई मौसम मेरे घर में खुशियों के साथ मेहरबान है और मैं जितना रब का शुक्र अदा करूं वो कम है। मेरी हूर बानों के साथ दोबारा कभी भी ऐसा वैसा कोई मसला या मामला दरपेश नहीं आया। और फिर मैं सारी बात बता चुकी थी कि कैसे इस पर नजर हुई और वह शरीर जन्नात की नजर में आई, मगर अल्लाह की रहमत से सब अच्छा हो गया। मैं अपनी बेटियों और बहुओं को तलकीन करती हूँ कि जवान बेटियों के मामले में माओं को कैसे एहतियात करनी चाहिए। हवेली छोड़ने के बाद हम कभी वहां नहीं गए, मगर अम्मा भी और दीगर मिलने वालों से मुकम्मल राब्ता रहा और उसके बाद में हम ऐसी किसी किस्म के वाक़े का हमें इल्म नहीं हुआ जिस पर तशवीश होती। हमने मामला फहमी के साथ अम्मा भी के मशवरे पर अमल करते हुए हवेली की ज़मीन को दूसरों के लिए भी महफूज बना दिया, क्योंकि जो किसी और का बुरा सोचे इसके साथ कैसे कभी अच्छा हो सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।